इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई इसने और बताया ये नेता है जिनको शूट किया जाएगा। हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे उनको। पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूटर जो है दूर से शूट करेंगे। जो 26 तारीख को पुलिस को, इसमें से आधे लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ। चार लोगों को आराम से और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, कई थाने का एसएचओ है वो। इस वास्ते छेड़छाड़ की सी, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। हाँ तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना। हमें सिर्फ पैसों की मजबूरी थी तो हमने काम किया, नहीं तो हम भी नहीं आते सर। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਜਿਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। जी हाँ, 26 जनवरी ਨੂੰ ट्रैक्टर रैली ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਈਪਰ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। हाँ, इस लड़के नूं जो फड़िया गया फिर इन्हें मतलब फड़िया तो नहीं उस करके भी दस की है, कितने किहड़ी लड़की की गल है, कौन किहने छेड़छाड़ की है, वो तो गल है ही नहीं सी कोई। ये दस्सण मुताबिक आ भी मैं इस वास्ते छेड़छाड़ की सी, ये रौला पाया सीगा भी जो लड़की का मसला आऊगा ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ,
ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਰਹਾ। पीला पुत्र कोई नहीं, आराम ना पी कोई। ਲੈ ਪਾਸੇ पहले तेरी आवाज नहीं आई ना, शुरू से बोल दे पूरी आराम से। नहीं कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं है। केवल आप इस पे माइक पे उनको सुन नहीं रहा, वो बता दो आप। ये मीडिया है, बोल दो बेटा। सर एक्चुअल में ये बात है कि हम हाँ मैं आया था 19 तारीख को सर यहाँ पे। माइक ले बेटा इसको ऐसे कर, इसको ऐसे रख, ऐसे ऐसे। मैं 19 तारीख को आया था। कंप्लीट कर लिया। चलो जी बोलो। मैं आया था सर 19 तारीख को यहाँ पे, ठीक है सर। हमें ये चेक करना था कि सिर्फ इनके पास, लोगों के पास हथियार है नहीं है, पर हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर, उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग अलग, ठीक है सर। हमें 4 जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों की शूट की तैयारी मिली है सर, 4 लोगों को शूट करना सर उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए, हमें सिर्फ पैसों की मजबूरी थी तो हमने काम किया, नहीं तो हम भी नहीं आते सर। अगर आप जैसे लोग पहले समझाते हैं हमें, तो हम इस काम में कभी नहीं आते सर। और हमें 26 तारीख को अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर नहीं रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। और जो इनकी रैली है सर, वो 26 तारीख को हमारे जो बंदे हैं, दूसरी टीम है, जो हमारी दूसरी टीम है सर, वो जो हमारी दूसरी टीम है सर, उसमें से 60 लोग इनके बीच में बढ़ के इनको परेशान करेंगे सर। और कुछ पूछना है सर, बताइए। परेशान के मतलब? परेशान मतलब ये है कि सर इन पे लाठीचार्ज भी हो सकती है, मतलब इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। 26 की प्लानिंग क्या, वो बता दो एक बार। 26 को क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? 26 तारीख को प्लान ये है कि सर जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे सर, तब इनमें क्या प्रॉब्लम है सर कि इनको पहले रोका जाएगा सर। अगर ये नहीं रुकते तो इन पे हवा में फायरिंग होगी सर, ठीक है सर। दूसरी चीज़, अगर ये फिर भी नहीं रुकते तो जो हमारे दूसरे पुराने लड़के हैं सर, जो 10 हैं लड़के, वो पीछे से हवा फायरिंग करेंगे सर, ठीक है सर। और उस पर ये लगेगा कि जो पुलिस वालों को ये लगेगा कि भाई इन पे फायर, या हम पे फायर कर रहे हैं, तो हमारा जो आगे जब ये रैली बढ़ेगी सर, तो इन पर रोकने के लिए है सर। और ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं, ठीक है। इसमें चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी, उसमें से आधी, जो 26 तारीख को पुलिस, उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है।
और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का थाने का क्या है? हाँ जी, रही थाने में है कोई रही राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है। नहीं थी, हम उनको उन नामों को सीक्रेट करना चाहते हैं, लेकिन है वो पंजाब के 32 में से। ये क्लियर बात है कि वो पंजाब वाले जो हैं उनमें से 4 को इसने बताए हैं। मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई इसने और बताया ये नेता है जिनको शूट किया जाएगा। तो इसने ये भी बताया था कि उसको, क्योंकि अभी घबराया हुआ ये सारी बात नहीं बता पा रहा, तो इसने ये भी बताया था कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूटर जो है दूर से शूट करेंगे। ये सारी बातें अभी नहीं बता पा रहा, घबराया हुआ है, लेकिन इसने ये सारी बातें स्नाइपर जो है वो लाके उनसे ये करवाएंगे, सारी शूट करवाएंगे। अभी जो बात है वो डरा हुआ है, वो इसीलिए बार बार हमारी तरफ देख रहा है। इसको हमने समझाया था बेटा तेरे पे कोई बात नहीं होगी, अभी ये बोल रहा है कि आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पुलिस को भी ये बोलेंगे कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको पुलिस के पास दे रहे हैं, ताकि जो इसकी सुरक्षा हो यहाँ, क्योंकि भीड़ में अगर लोगों को पता चल गया तो इसके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। कौन है ये, कहाँ है, कहाँ से आया? इसके हाँ इसके राय साहब ये हाँ तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना। तो यही बात है ना कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है, इसके साथ ही इसको शूट कर दें, तो इसलिए हम पुलिस की कस्टडी में इसको दे रहे हैं। मंजीत जी, ये मैं इसका कोई एड्रेस और वो पहचान नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी इससे पहले क्या करता था, कुछ बताया उसने? हाँ, इसने पहले बताया था। शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। हाँ। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कप्ता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है। हाँ। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने। इसका प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या करता था? इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। हाँ। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। जो स्टेट का ऐसे ही जाएंगे, ऐसे तरह में बना हुआ वो बात गलत है। जो ये लड़का बोल रहा है, आराम से सुनिए, जो एजेंसी काम करती है, एक को एक काम देती है, उसको दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी मेरी दिल का देखो, इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना तो पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़े जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास, जो केबीएस के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा। सर, ये लोकेशन सोनीपत है? नहीं, यहाँ पर मक्खन भोग बोलते हैं। मक्खन भोग यहीं पर है। मक्खन भोग का ढाबा है, उसके KFC के साथ है, नजदीक है। KFC के थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग का ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है, वो 2 स्थानों पर उनको हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। और तीसरी बात ये है, इनके ए ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें
किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये ढंग था। एक ग्रुप ने ये काम करना था जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे गिराना था, उससे नेशनल सेंटिमेंट हर्ट हो गई। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे, वो रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं, उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है। वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियाँ इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की ने इसने फोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहाँ ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था, 23 को हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है। पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को, और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं। उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो, आपको $25 मिलेंगे, 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। जैसे नहीं, मौके की बात क्या करते हैं। तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट, उस पर भी चल गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक एजेंसी ने यह अनाउंस किया है, जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको 2.5 लाख $2 मिलेगी, ठीक है। संधू साहब इसकी की गारंटी है कि यदि चंगी तरह पुलिस पड़ताल की जाएगी तो जो अंदर बंदे हो एक्टिव है उन्होंने भी फड़या जाऊगा। नहीं, हम ये चाहते हैं ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान न किया जाए। एक मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुको। हरियार मान जी और भार्गव जी आ रहे हैं, रुक जाओ, रुको, मुंडे ने बिठा दो वापस, इसको बिठा दो। आपको नहीं घबराया होया यारो, मैं कह यार पंजाब वाले आ रहे हैं, सामने करेंगे। वो तो आ गए भाई आप साथ में बैठ जाओ। इतने पहुंच गया मैं क्या। आपकी जगह आप हम ले लेंगे। आप अब ये आ गए, एक बात सुनो, इनको एक बात अपना बैठ जाएंगे। बात सुन लो ना। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? हरियाणा तक केंद्र इको सरकार है, इको सरकार। ये एक जांच का सब्जेक्ट है, ये पूर्ण रूप से जांच का है। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? सरकार दी एजेंसियां काम करती हैं। मतलब ये जांच होनी चाहिए इसकी। एक मिनट, हम इसको क्यों पुलिस को दे रहे हैं कि ये लड़का थोड़ी उम्र है इसकी, उन्होंने इसको इतना डाल रखा है कि आपके परिवार का ये करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। टिकैत साहब, आप बार बार जांच की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, तो क्या आप मानते हो कि जांच जो है सही हो पाएगी? छोड़ो भाई, अब जो हो गया अब क्या करा जाए, हमारे पे क्या इलाज है? हम क्या कर रहे हैं? इनको दे दो बस। एक मिनट रुक जाओ, स्टडी में दे दो। मैं तो रुक जाता हूं, मेरी मेहनत तो सुनो। वो आ गए, मैं गई थी
डिटेन किया है। इस शख्स का आरोप है, इसका कहना यह है कि इसे जो है शादी है यहाँ पर भेजा गया था। जिस नौजवान ने ये खुलासे किए ने ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। गिरफ्तार करके नौजवान को लैके जाया जा रहा है। शक्की नौजवान 26 जनवरी के गणतंत्र किसान परेड नूं तारपीड़ करन दी पूरी साजिश सी। कुछ मन्ने जो किसान लीडरां नूं गोली मारना चाहता सी। सोनीपत में रह रहे इस वक्त उत्तराखंड का रहने वाला है। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 10 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कोशिश यही थी राजेश विनती है, कोई मीडिया नहीं, आपका एक कर्मी साथ में आ जाए और एक मिनट दे देंगे। पीसी में लेके जा रहे हैं दोबारा? नहीं, हम किसी आदमी नहीं, पीसी में नहीं आ रहे, पीसी में नहीं आ रहे। तस्वीरें देख रहे हो, शक्ति नौजवान ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। 18 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ पर्दाफाश। तो ये देखें दोबारा से जो एक बार पुलिस लेके जा रही थी, लेकिन एक बार मोड़ किसानों को लेके जाया जा रहा है। इस नौजवान ਨੂੰ किसान जथेबंदियां लगातार कहंदियां आईयां ने कि इस अंदोलन ਨੂੰ कुचलਣ ਲਈ केंद्र ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ लगातार काम कर रही ने तो शक्की बंदे फड़े जा रहे हैं। सो एक शक्की बंदा फड़िया गया है। ये बंदा बीते दिन ही फड़िया गया जदों इसने एक लड़की नूं छेड़न वाली गल आखी। तो उस तो बाद जिहड़े किसानां दे वलंटियर लगे हुंदे ने काम ते उन्होंने इस नूं गिरफ्तार कर लिया। जदों पुछगिछ की गई तो पता लग्या कि ये एजेंसियां दा बंदा हैगा। इसने वड्डी साजिश कड़ी हुई सी। इन्हां दी पूरी टीम ने, इन्हां दी टीम में काफ़ी बंदे काम करते हैं जिन्होंने पूरी साजिश कड़ी हुई सी इस अंदोलन को तार पीड़ो करन दी। इतों पता लगता है कि 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टर परेड का केंद्र सरकार के उत्ते वड्डा असर हैगा। इस अंदोलन ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। नौजवान ने वड्डे खुलासे भी किए ने। सोनीपत का यह रहने वाला है, 9 जमाता पढ़िया होया है, पर नौजवान ने क्या है हथ जोड़ के कि मेरी पहचान जिहड़ी हैगी है वो उजागर ना की जाए क्योंकि इस नाल मैनू मेरी जान का खतरा है। मेरे साथी जिहड़े टीम दे विच हैगे ने उन्होंने कहा कि असीं तैनू भी मार देंगे। इस करके इसनूं अपने परिवार की बदनामी का भी डर है। उसका कहना है कि मेरे परिवार की भी पहचान उजागर ना की जाए। पर खबर है कि पिछले कई सालों तो यह सोनीपत दे विच रह रहा सी नौजवान, तो इस नौजवान ने हुण वड्डे खुलासे किए ने कि 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस वाले दिन किसान परेड दे विच ट्रैक्टर रैली दे विच गोलाबारी होनी सी। उहदे विच एजेंसियां दे कई शक्की बंदे होने सी। इस करके ये बंदा अजे समय फड़िया गया जदों अज केंद्र सरकार भी तलखी दे विच नज़र आई। खास तौर पर खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उन्हां दा कहना सी कि असीं जो प्रस्ताव रखिया वो तुहानूं मंजूर है तो दसो अगे बैठक होएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता बैठक का। पहली बार केंद्र सरकार की अजी तलखी देखने को मिली। अजी तलखी तो बाद इस नौजवान की गिरफ्तारी होंदी है। बड़े वड्डे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये नौजवान किन्ना नाल मिलिया होया, एजेंसियां इस पिछे किदा कौन काम कर रही हैं। किसान आगुओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस दे लई जिम्मेवार है क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ही इस अंदोलन को तार पीड़ो करने साजिशां कर रही सी। पहला इस अंदोलन के शामिल होने वाले किसानों को खालिस्तानी अतवादी फिर माओवादी कहा जाता है। इस तो बाद बाहरों भी कई बंदे अंदोलन को भड़काउण की कोशिश करते हैं, कई बंदे सियासतदानां दे हत्थां दे विच खेडदे ने। लेकिन इस नौजवान ने अपनी जुबानी कई गल्लां वड्डियां आखियां ने। उसका कहना है कि सानूं पिछों हथियार भी आने सी ते 4 किसान आगू ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ किसान आगू ने पंजाब ਦੇ ਉਹ निशाने उत्ते सी। उस दिन उन्हां उत्ते गोली चलाई जानी सी जदों इशारा पिछों दी आउणा सीगा। सो इस वड्डी साजिश का जिहड़ा पर्दा होया अज फाश होया। 26 जनवरी नूं हुण 3 दिन रह गए ने। यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होएगा कि हुण किसान आगू की
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘਿਰੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 4 ਆਗੂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸਨਾਈਪਰ ਗਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।